السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو رب ہے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جس کا وہ سوال کرے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا اس حالت میں کہ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، وہ صف میں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا اس حالت میں کہ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ صف میں داخل ہوا اور اس نے کہا، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاک ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس شخص نے کہا، میں آیا، میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے یہ کلمات پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو اوپر لے جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی اثناء میں ایک شخص نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ
व सुब्हानल्लाहि बुकरातम व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज़्यादा। और सुबह शाम अल्लाह के लिए तस्बीह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कालिमात कहने वाला कौन है? लोगों में से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कालिमात कहने वाला मैं था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बड़ा तअज्जुब हुआ कि इन कालिमात के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। सैयदना रबिया बिन काब सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के करीब सोया करता था, क्योंकि मैं आपके वज़ू के लिए पानी मुहैया करता था। मैं सुनता था कि रात को बहुत देर तक आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते रहते थे। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को खिताब फरमाते तो इसमें अल्लाह की हम्दो सना बयान करते थे। सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब किया तो अल्लाह की हम्द बयान की। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा सैयदना ज़मात रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने दिया था, उसकी इब्तिदा इन अल्फाज से की थी, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है और हम इसकी हम्द बयान करते हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और सवारी आपको लेकर मकामे बैदा पर खड़ी हो गई तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सुभान अल्लाह, और अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मारने के बाद जिंदा किया और इसी की तरफ बरोज़े क़यामत उठ कर जाना है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व कफाना व अवाना फ़कुम मिम्मन ला काफ़िया लहु वला मुविया। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमारे लिए काफ़ी हुआ और हमें ठिकाना दिया। कितने आदमी वो हैं कि जिनका ना कोई कफ़ायत करने वाला है और ना इनको कोई ठिकाना देने वाला। सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान उठाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि गैरा मकफियुन वला मुवद्दाइ वला मुस्तगना अन्हु रब्बाना। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ जो कसरत से हो, पाक हो, बाबरकत हो, ना काफ़ी समझी गई ना छोड़ी गई, और ए हमारे रब, कोई भी इससे बेपरवाह नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सैयदना अबू सईद खदरी
रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो इसे अच्छा मालूम हो तो वो यकीनन अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा उसे चाहिए अल्लाह की हम्दो सना बयान करे। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स भलाई पाए उसे अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए, और जो इसके अलावा कोई चीज़ पाए तो वो अपने नफ्स के अलावा किसी को मलामत ना करे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफाक में से किसी उफ़्क़ में बादल आता देखते तो जब आप जिस काम में भी मशगूल होते, ख्वाह नमाज ही में क्यों ना होते, उसे छोड़कर बादल की तरफ मशगूल हो जाते और फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिन शर्रि मा उरसिला बिही, या अल्लाह हम इस चीज़ के शर से तेरी पनाह में आते हैं जो कुछ देकर ये बादल भेजा गया है। अगर बारिश शुरू हो जाती तो 2 बार या 3 बार फरमाते, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िअन, ऐ अल्लाह इस बारिश को फ़ायदा मंद बना दे। और अगर अल्लाह अबर खोल देता और बारिश ना होती तो आप इस पर भी अल्लाह की हम्द बयान करते। अगली आयत है अर्रहमान निर्रहीम, अर्रहमान बेहद रहम वाला, निर्रहीम नहायत मेहरबान। ये दोनों नाम रहम से मुश्तक हैं और दोनों मुबालगे के सीगे हैं। रहमान में रहीम की निस्बत ज़्यादा मुबालगा है, इसीलिए या रहमान दुनिया वल आखिरा कहा जाता है। वो रहमान है सो दुनिया में इसकी रहमत आम है, जिससे काफिर और मोमिन सब बिला तखसीस फैज़याब हो रहे हैं, तो हम आखिरत में वो सिर्फ रहीम है, यानी इसकी रहमत सिर्फ मोमिनीन के लिए ख़ास होगी। इसम रहमान भी अल्लाह ताला ही के साथ मखसूस है, किसी और को इस नाम के साथ मासूम नहीं किया जा सकता, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलाहुल अस्माउल हुस्ना, कह दे अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, तुम जिसको भी पुकारोगे सो ये बेहतरीन नाम उसी के हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 100 यानी 99 नाम हैं, जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैंने रहम को पैदा किया और इसे अपने नाम से मुश्तक किया है, जिसने इसे मिलाया मैं उसे मिलाऊंगा और जिसने इसे तोड़ा मैं भी उसे तोड़ दूंगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वो सवाल करे। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है,
बंदा जब कहता है अर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सनाह की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मोमिन को अल्लाह के अजाब के बारे में सही इल्म हो जाए तो कोई भी इसकी जन्नत की ख्वाहिश ना करे, और अगर काफिर को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है तो कोई भी अल्लाह की जन्नत से ना उम्मीद ना हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा किया तो एक किताब में जो इसके पास अर्श पर है ये लिख दिया बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालश्त करीब होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, अगर बंदा मुझसे एक हाथ करीब होता है तो मैं एक दोनों हाथों के फैलाव जितना इसके करीब हो जाता हूँ, और अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं, इन 100 रहमतों में से इसने जिन्नों इंस मवेशी और कीड़ों मकोड़ों में एक रहमत नाज़िल फरमाई है। इसी एक रहमत की बदौलत जिन्नात, इंसान और हैवान एक दूसरे पर मेहरबान होते और रहम करते हैं, और इसी की वजह से वहशी जानवर तक अपने बच्चों पर रहम करते हैं। 99 रहमतें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हैं। इन रहमतों में से अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी लाए गए। इन कैदियों में एक औरत किसी को तलाश कर रही थी। जब इसने इन कैदियों में से एक बच्चे को पाया तो उसे उठा लिया और छाती से लगाया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया क्या तुम समझते हो कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? हमने कहा नहीं ए अल्लाह के रसूल, वो इसे आग में नहीं डाल सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती मेहरबान जितनी मेहरबान ये औरत अपने बच्चे पर है इससे ज्यादा मेहरबान अल्लाह अपने बंदों पर है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने उन बंदों पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करेगा इस पर रहम नहीं किया जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों पर रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम अहले ज़मीन पर रहम करो तो जो आसमान में है वो तुम पर रहम फरमाएगा। मालिक यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह ताला जिस तरह क़यामत के दिन का मालिक है इसी तरह वो दूसरे तमाम दिनों का भी मालिक है। जहाँ क़यामत के दिन का जिक्र बिलखुसूस इसलिए आया कि इस दिन तमाम मखलूक़ात की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। तमाम शाहाने दुनिया और इनकी राया सब आज़ाद गुलाम और छोटे बड़े बराबर हो जाएंगे और सिर्फ एक अल्लाह की बादशाहत बाकी रहेगी।
سبھی اس کے جلال و جبروت کے سامنے ہوں گے، سبھی اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دن اپنے اختیار اور انسان کی بے اختیاری کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً دھور کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو، یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ اور فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا، اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے، مگر میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بدترین نام اس شخص کا ہوگا جو اپنا نام مالک یعنی مالک الملاک شہنشاہ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ آج
सूरत फातिहा की 3 आयत की तफसीर की है। इसके अगले दिन फिर बाकी आयत की तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।